जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. I welcome you all in my YouTube channel Exploring the Concepts. And my today's topic is from Kingdom Plante, that is chapter number 8. It's my second lecture from this chapter, and my today's topic is evolution of leaf. So, as far as evolution of leaf is concerned, let's start with some figure. Now, look at this figure. This is the stem from an ancient plant. You can say Lycopsidians. Lycopsidians are the group of plants that first have developed the leaves in them, right? And obviously, before development of the leaf, the plant must have the developed vascular bundles in them. So पहले plants में vascular bundles develop हुए. Later on, plants have developed the leaves in them. Okay, so this is an outgrowth. This is and there is an hypothesis for the development of leaf. Microphil leaves. Microphil leaves are the ancient leaves or the first leaf, or you can say the small leaves, the leaves having single mid vein in it. A single mid vein in it is called as a microphil. Now let's see how they have developed. So on the stem, on the main green stem of the leaf, there is developed an outgrowth, and that outgrowth obviously is green in color. Later on, you can see in this figure, vascular bundle too have developed an outgrowth, a similar outgrowth which is going to develop in that initiation and with the passage of time they have completely grown within that outgrowth, and this is why this hypothesis is called as outgrowth hypothesis, as by having a simple outgrowth vascular bundle have developed, and then leaves have developed. Okay, now I'm going to tell you the definition of a leaf. Now, what is a leaf? A leaf, it's a expanded green colored structure which have vascular bundles in them. इट मीन्स कि ये बात तो क्लियर हो गई कि जो भी लीफ होगा उसमें वेस्कुलर बंडल जब तक नहीं होगा उसकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी. सो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले प्लांट्स ने वेस्कुलर बंडल डेवलप किया, उसके बाद इनेशन आई, इनेशन से कि फर्दर ग्रोथ के साथ साथ वेस्कुलर बंडल की भी डेवलपमेंट हुई, और एक सिंगल लाइन ऑफ वेस्कुलर बंडल इस डेवलप हो गई इस लीफ के अंदर, एंड दैट लीफ इज कॉल्ड एज माइक्रोफिल. Now look at this, the text. Something which is very important about the text, that about 380 million years ago. This date is very important. This I want to tell you कि इतना बहुत ज़्यादा यानी पुरानी बात है कि जब पहली दफ़ा प्लांट्स ने लीव्स डेवलप किए, लेकिन प्लांट्स ने लीव्स तब तक डेवलप नहीं किए जब तक कि उन्होंने वेस्कुलर टिश्यू डेवलप नहीं कर लिया. और जिस भी स्ट्रक्चर में जो भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर था, जब भी उसके अंदर एक भी लाइन वेस्कुलर बंडल की डेवलप हो गई तो उसका नाम हमने माइक्रोफिल रख दिया. एंड माइक्रोफिल आर द फर्स्ट लीव्स दैट हैव डेवलप्ड इन लाइकॉप्सिडा ग्रुप. लाइकॉप्सिडा पहला ग्रुप है जो कि जिसमें लीव्स डेवलप हुए. इससे पीछे वाले सारे ग्रुप्स में लीफलेस थे, वो ट्रेक्यूफाइट्स थे मगर वो लीफलेस थे, उनकी स्टेम ग्रीन कलर की थी. ओके, एक और ख़ास बात माइक्रोफिल्स की है कि माइक्रोफिल्स डायरेक्टली दे हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट. दे डिडंट इवॉल्व फ्रॉम अ स्पेसिफिक रीजन. जैसे कि आजकल के लीव्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक रीजन से ओरिजिनेट होते हैं जिसमें प्ल्यूरिपोटेंट सेल्स होते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लीफ, बर्ड के लिए, लीफ के लिए. लेकिन ये जब डेवलप हुए तो कोई स्पेसिफिक सेल वहाँ मौजूद नहीं थे. ठीक हो गया. And the microfilm may have originated as an outgrowth of a vascular stem. ये एक लाइन मैंने बताने के लिए आपको ये सारी कहानी सुनाई है. ओके, नेक्स्ट द स्टेप्स इन एवोल्यूशन ऑफ अ लीफ. बेसिकली ये स्टेप्स जो हैं ये एवोल्यूशन ऑफ लीफ के नहीं है, एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल लीफ है. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फिगर. Look, now look at this figure. This is a megaphil leaf. Now before this is a leaf, megaphil leaf. It's a type of a leaf that have a broad lamina and have multiple veins in it. Multiple veins along with a single midrib uh, in the mid of the leaf. ठीक हो गया. A megaphil leaf is a leaf which have a expanded blade of leaf with numerous veins and a single midrib in it.
while microphylls they just have a single mid vein. मैं उसको मिड रिब भी नहीं कह रही क्योंकि वो बहुत थिन सी है ना, तो इसलिए। सो मेगाफिल एक ऐसा लीफ है जो जिसका लेमिना बहुत ब्रॉड है और उसके अंदर बहुत सारी वेन्स है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस देन हाउ दे हैव डेवलप्ड. So these basically are the steps which are responsible for the development of a megaphyll leaf. ठीक है, megaphyll leaf कैसे develop हुआ ये देखने के लिए हमें इसमें से देखना पड़ेगा. Now leaves originate from a group of pluripotent cells termed the shoot apical meristem. Leaves originate from a group of pluripotent cells. Now the term pluripotent. The term pluripotent means a cell which is responsible for the development of so many different types of cells. Means कि differentiation नहीं हुई भी और वो बहुत से different cells बना सकता है. टर्म द शूट एपिकल मेरिस्टम, इसको एपिकल मेरिस्टम कहते हैं, मैंने को पहले भी बताया कि होते मेरिस्टमेटिक सेल्स हैं. ओके, नाउ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ अ मेगाफिल. फर्स्ट स्टेप इज ओवरटॉपिंग, देन प्लेनेशन, देन वेबिंग. ओवरटॉपिंग, प्लेनेशन एंड वेबिंग. नाउ व्हाट इज ओवरटॉपिंग? ओवरटॉपिंग के लिए एक टर्म समझनी पड़ेगी, डाइकोटमसली ब्रांच्ड. सो जो एरियल प्लांट्स से, सॉरी मैं आगे जाना चाहिए मुझे, ये एंशियंट, ये स्कीमेटिक डायग्राम है, आप चाहो तो ये ड्रॉ करो. ये स्कीमेटिक डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हो कि हर, जैसे कि अब ये मेन स्टेम है. मेन स्टेम इज डिवाइडेड इनटू टू. डाइकोटमस मींस टू ब्रांचेस, राइट. बाइफर्केशन, हर ब्रांच आप चेक कर लो कि दो में डिवाइड हुई है. ये वाली दो में, फिर इसको आप देखो, इसके बाद ये दो में डिवाइड होगी, फिर आप इसके साथ चले जाओ, ये दो में डिवाइड होगी. दिस इज कॉल्ड एज डाइकोटमस ब्रांचिंग. यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टेम थी जो कि ग्रीन कलर की थी और उसकी हर ब्रांच कैसी थी, डाइकोटमस ब्रांच थी. ठीक है, लेटर ऑन क्या हुआ, दैट डाइकोटमस ब्रांचिंग इसकी कोई खास शेप बन गई. खास शेप कैसे बनी कि ये जो मेन स्टेम थी इसकी यहाँ से दो डिविजन्स हुई, दो डिविजन्स होने के बाद आगे से दो डिवीजन की, डाइकोटमस तो है ही है. फिर डाइकोटमस के बाद क्या हुआ कि हर एक में दो स्टेम्स थी ना, एक ने ज्यादा ग्रो करना शुरू कर दिया, ओवरटॉप गया उसको. ठीक है ना, ओवरटॉपिंग, उसे थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर दिया. एक ज़रा बड़ी हो गई, इन डाइकोटमस ब्रांच में से एक स्टेम हमेशा थोड़ी ज़्यादा ग्रो कर गई. दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओवरटॉपिंग. मैं भी आपको डेफिनेशन बताऊंगी पीछे से. देन प्लेनेशन, अब आप देख रहे हो कि सारे एक लाइन में खड़े हुए हैं, राइट, एक प्लेन पे हैं. मीन्स अगर आप इसको इस एंगल से उस साइड पे अपने, यानी कि इस फिगर की राइट साइड पे खड़े होकर देखो तो आपको सिर्फ एक नजर आएगा, बाकी सारे एग्जैक्टली इसके पीछे होंगे. लेकिन अभी हम ये फिगर फ्रंट से देख रहे हैं, ठीक है ना. फ्रंट से आप देख रहे हो ये सब एक प्लेन में, क्या हुआ, फिर ये प्लेनेशन हो गई. प्लेनेशन होने के बाद वेबिंग शुरू हो गई. अब ये बिल्कुल ना समझें कि ये दिनों की बात है, ये महीनों की बात है, या ये सालों की बात है, ये हजारों सालों की बात है. ठीक है ना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा डाइकोटमस ब्रांचिंग से ओवरटॉपिंग होने में, ओवरटॉपिंग होने से प्लेनेशन होने में, प्लेनेशन होने के बाद वेबिंग में कितने ज़्यादा टाइम लगा. वेबिंग क्या है बाय द वे, अब ये अंदर वही ब्रांचिंग है जैसे ये वाली एक ब्रांचिंग है, लेकिन अब आप देख रहे हो ना इन दो ब्रांचेस के दरमियान में यहाँ पे गैप है. दिस गैप इज फिल्ड विद द पेरेन्काइमा सेल्स, राइट, जिसको पहले फ्यूजन कहा गया. पहले सिर्फ इन दोनों के दरमियान में डेवलप हुई ये वेबिंग जो थी. फिर यहाँ थोड़ी थोड़ी थोड़ी, जैसे हमारी डक्स के फिंगर्स के दरमियान में स्पेस में कोई चीज़ डेवलप, उसकी आउटर स्किन डेवलप हुई हुई होती है ना, उसको वेब वेब कहते हैं, वेब्ड फुट कहते हैं. तो ये इसमें भी यही हुआ कि इनकी दरमियान में टिश्यू डेवलप होना शुरू हो गया. कौन सा टिश्यू, पेरेन्काइमा टिश्यू. ये पेरेन्काइमा टिश्यू डेवलप हो गया और डेवलप होने के साथ साथ ये क्लोज होता चला गया और यूं एक आप देख रहे हो ऐसा का एक लीफ डेवलप हो गया. नाउ लेट्स गो बैक टू द टेक्स्ट. Overtopping, the dichotomously branched aerial portion of the stem showed unequal branching. ठीक है, डाइकोटमस ब्रांचिंग भी, ओवरटॉपिंग क्या होता है, अनइक्वल ब्रांचिंग हो गई. द स्टैब्लिशमेंट ऑफ डोमिनेंस ऑफ वन ब्रांच, एक ने थोड़ा ज़्यादा ग्रो किया और वो डोमिनेंट हो गई. एंड ऑफ द डिटर्मिनेंसी इन द ओवरटॉप्ड ब्रांच, आपको मैंने बता दिया कि ओवरटॉपिंग क्या होती है. देन ब्रांचिंग इन द सेम प्लेन, सारे सब ब्रांचिंग कैसी होगी, एक ही प्लेन में होगी. देन वेबिंग, डेवलपमेंट ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यू बिटवीन क्लोज ब्रांचेज, जो क्लोज क्लोज है उनके दरमियान में पेरेन्काइमा टिश्यू डेवलप हो गया और यूं लीव्स का ब्रॉड लेमिना डेवलप हो गया विद मल्टीपल ब्रांचेज विद इन इट. ठीक
हो गया। और ब्रांचिंग स्टेम इसमें बीच में नज़र आना शुरू हो गई, बीच में फिर वो फिर द फर्दर डेवलपमेंट के साथ बहुत सी वेन्स मल्टीपल ब्रांचिंग के साथ डेवलप हो गई और आज का कॉम्प्लेक्स लीफ डेवलप हुआ। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये दो हाइपोथेसिस थे। एक हाइपोथेसिस था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोफिल लीफ और दूसरा हाइपोथेसिस था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेगाफिल लीफ। ओके, एक ये फिगर, एक और फिगर मैं आपको फाइनली दिखाना चाहती हूँ। दिस इज व्हाट इज अ डाइकोटोमस ब्रांचिंग। देख रहे हो आप, आउटर लेयर इज ग्रीन और अंदर वेस्कुलर टिश्यू है। लेटर ऑन यहाँ डाइकोटोमस ब्रांचेस के एंड ओवर टोप कर रहे हैं। एक एक देख रहे हो आप, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसका ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। बड़े होने के बाद क्या हो रहा है कि अब वो सब एक प्लेन में आ गए हैं, ठीक है ना, बिल्कुल एक सेम प्लेन में आ गए। प्लेन में आने के बाद इनके दरमियान में ये वेबिंग, यहाँ देखो ये सब के दरमियान में काफ़ी गैप है, लेकिन यहाँ इनके दरमियान में ये टिश्यू डेवलप हो गया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फ्यूजन, फर्स्ट स्टेप ऑफ वेबिंग। लेटर ऑन जो वेबिंग बढ़ गई है और इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो सारा फिल्ड हो गया, दरमियान में ये वेन्स नज़र आ रही हैं हमें, मगर उनकी फर्दर ब्रांचेस भी हो चुकी हैं और उनके दरमियान में बहुत सा डिफरेंट टाइप्स का पैरेन्काइमा टिश्यू भी डेवलप हो चुका है। दिस इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल लीव्स। ठीक हो गया, जो आगे तमाम तर पौधों में हमें नज़र आती हैं। ओके, okay, my next topic is seed plants. Seed plants, now once again, these are vascular plants, tracheophytes, but these are tracheophytes, but along with having the vascular bundle, the leaves, sorry, megaphil leaf, they also have developed the seeds in them. Okay, so there are two different types of seeded plants. One of them is gymnosperms, other is angiosperms. आपको पहले से पता होंगे ये टर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स आर फ्लावरलेस प्लांट्स, ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म सीडेड तो हैं, मगर फिर एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि दे डिडंट डेवलप फ्लावर्स इन देयर whole life, while angiosperms are the flowering plants. Gymnosperms are flowerless plants that produce cones and seeds. Now, the instead of having flowers, they have cones in them, right? Gymnosperms have cones in them, and their seeds are developed inside the cones. The term gymnosperms literally means naked seeds. Now, why they are called as naked? Because they are not present inside the flower or inside the ovary. They are present on the leaves of the cones, the woody leaves of the cones. So, the gymnosperm seeds are not encased within an ovary. Now, angiosperms are the plants that produce flowers and bear their seeds inside fruits. Like apple के example है, apple को अगर आप कट करोगे तो seeds उसके अंदर पड़े हुए हैं, तो it means कि seeds छुपे हुए हैं, enclosed हैं within the ovary. So this is why they are called as angiosperms. Now, gymnosperms general characteristics. इस साल आपके कोर्स में gymnosperms के सिर्फ general characters हैं. So gymnosperm general characteristics. The word gymnosperms comes from the Greek words gymnos, naked, and sperma, seeds, hence known as naked seeds. जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ. These are the plants that are the seed producing plants, but unlike angiosperm, they produce seeds without fruits. ठीक है, fruits कोई नहीं है इनके, मगर cones इनके ऊपर develop होती हैं. On the कहाँ होते हैं मैं बता चुकी हूँ. Now characteristics. They do not produce flowers. अब ये point सबको clear हो गया. The gymnosperm, they do not have flowers in them. Seeds are not formed inside a fruit. ये भी सबको clear हो गया. They are naked. They are found in colder region. अब आप लोग मरी जा रहे होते तो रास्ते में आपको ये कोन गिरी हुई मिलती हैं. इट मीन्स के वो पाइनस या कॉनिफर्स जो दरख्त हैं वो इन रीजन्स में, अयूबिया, मरीना, गली, यहाँ हमें ऐसे पौधे नज़र आते हैं. इसका मतलब है कि इनको ठंडा इलाका चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए. और दे डेवलप नीडल लाइक लीव्स. मैं थोड़ी देर में दिखाती हूँ आपको. इनके पत्ते सुइयों की तरह हैं. नीडल मतलब पतले पत्ते हैं, पतले और लंबे से लीव्स हैं. ऐसे नहीं है जैसे मेगाफिल लीफ अभी हमने डिस्कस किया. needle like leaves हैं. They are tall woody perennial trees. This is very important about them. The trees are tall. आपने देखे हैं woody सख्त है, लकड़ी के बने हुए, लकड़ी इनमें है. perennial सदाबहार पौधे हैं. वो ट्रीज हैं या बुशेज हैं, ये होती एवरग्रीन है. देन प्लांट बॉडीज स्पोरोफाइट. जितने भी सीडेड प्लांट हैं या ट्रेक्योफाइट्स जब से शुरू हुए हैं, इन सब में जो इनकी प्लांट बॉडी है मच्योर और डोमिनेंट इज स्पोरोफाइट.
एंड दे हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी। आप प्लांट को आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। आपको पता है कि इसमें लीव्स हैं, इसमें स्टेम्स हैं, इसमें रूट्स हैं, इसमें ब्रांचेस हैं, और ट्रू लीव्स हैं, ट्रू स्टेम्स हैं, ट्रू ब्रांचेस हैं, ट्रू रूट्स हैं, बिकॉज एवरी पार्ट हैव वेस्कुलर बंडल इन दैम। And the male gametophyte produce two gametes, but only one of them is functional. मेल गेमिटोफाइट में दो गेमिट्स प्रोड्यूस होंगे, लेकिन एक ही फंक्शनल है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन वाला जो बात थी वो उसके अंदर ज़रा डिफरेंट है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स भी है ही पढ़ रहे हैं हम, और हम देखने लगे हैं कि जो जिम्नोस्पर्म्स में दो तरह के लीव्स हैं, फॉलिएज एंड स्केलर, स्केल लाइक लीव्स हैं। जैसे आपने प्याज के ऊपर देखे थे ना, सख्त ड्राई से लीव्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज स्केल लीव्स ना। लुक एट दिस फिगर, इन दिस फिगर दीज आर स्केल लीव्स, ये वाले जो इसके साथ साथ चिपके हुए ब्राउन से कलर के, दीज आर स्केल लीव्स, और दीज आर फॉलिएज लीव्स। जो आगे नीडल लाइक पतले पतले लंबे लंबे लीव्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज फॉलिएज लीव्स। एवरग्रीन है, थिक क्यूटिकल, आप देख रहे हो पत्ता आपको यहीं से मोटा लग रहा है, क्योंकि ठंडे इलाके में तो अपना वाटर इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता इन्हें, तो ये कंजर्व करते हैं वाटर को। इनकी हार्श इन्वायरमेंट से बचने के लिए इनकी क्यूटिकल थोड़ी ज़्यादा थिक होती है। वेनेशन इनकी सिंपल है, मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करती हूँ क्या था। लीव्स इनके सिंपल और कंपाउंड है। अब इन पॉइंट से पहले मैं आपको लीव्स दिखाना चाहती हूँ उसके, ये लीव्स हैं। देखो अब ये सिंपल लीफ है, मेरे ख्याल से फिगर बड़ी होकर नज़र नहीं आ रही। ये देखो, ये सिंपल लीव्स हैं। मीन्स के एक सेंट्रल मिडरिप एंड वेरी डिफाइंड एंड ब्यूटिफुली डेवलप्ड वेन्स इन इट, राइट। वैसे बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग नहीं है, इसको कहते हैं सिंपल वेनेशन, इसको कहते हैं सिंपल वेनेशन। ये जो नज़र आ रहा है ना आपको, ये वाला लीफ, इस लीफ में ये रेटिकुलेट वेनेशन है, मीन्स रिचली ब्रांच्ड, ठीक है ना। ये तो ऐसा एक पौधा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग हुई हुई है। तो ये तो हो गया आपके पास सिंपल वेनेशन, ठीक है। दूसरा इसके अंदर उसने कहा कि जो लव लीव्स हैं वो स्पाइरली अरेंज्ड हैं। मीन्स कि अगर आप सर्कल के जैसे स्पाइरल स्टेयर्स होती हैं, आपने देखा एक यहाँ इधर भी मुड़ जाती है, उधर फिर सामने आते हुए पीछे चली जाती है, तो इसी तरह मेन स्टेम के इर्द गिर्द लीव्स जो हैं वो स्पाइरली अरेंज होते हैं। इस वाली फिगर में स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स आर क्लियरली मैंशनड। ये एक पाइनस है, एक जिम्नोस्पर्म है, जिसके लीव्स आप देख रहे हो कितने खूबसूरती से स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। तो ये दो पॉइंट्स हमने लीव्स के डिस्कस कर लिए कि एक तो ये सिंपल विनेशन है, मीन्स के विनेशन में सिंपल एक मिड रिब और उसकी कुछ ब्रांचेस, ये तो होगी सिंपल विनेशन। दूसरा कि लीव्स कैसे थे, स्पाइरली अरेंज थे, मीन्स एक ख़ास पैटर्न पे वो नीचे से ऊपर मूव कर रहे हैं, और लगता है कि स्पाइरल बना हुआ लीव्स का। ओके, द सीड्स कंटेन एंडोस्पर्म दैट स्टोर्स फूड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। उसी तरह सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म है, डबल फर्टिलाइजेशन होगी, और दीज प्लांट्स हैव वेस्कुलर टिश्यूज विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। वेस्कुलर टिश्यूज इसके अंदर है ही है, जाहिर बात है, ये तो लंबे ऊंचे दरख्त हैं, तो इनके अंदर तो ऑब्वियसली वेस्कुलर बंडल होगा ही, ठीक है ना। जाइलम डज नॉट हैव वेसल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म का एक बहुत प्रोमिनेंट डिफरेंस है कि जाइलम के अंदर जाइलम में वेसल एलिमेंट होता है, आपको शायद याद है ये टर्म, वेसल एलिमेंट होता है इन एंजियोस्पर्म्स, वाइल जिम्नोस्पर्म में ट्रैकीड्स हैं इनके अंदर, ठीक है। इनके अंदर वेसल एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते, और फ्लोएम में भी कंपेनियन सेल्स नहीं होते। आपको ये दोनों टर्म्स बहुत अच्छी तरह से याद होंगी कि जो एंजियोस्पर्म्स में जाइलम था, आपने पढ़ा हुआ है प्लांट का, जो जितना भी आपने अभी तक जाइलम पढ़ा है उसमें आपने वेसल एलिमेंट पढ़े हैं, ऐसे ही है ना। और जो आपने प्लांट्स में फ्लोएम पढ़ा है उसके साथ आपने कंपेनियन सेल्स पढ़े हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में ना तो वेसल एलिमेंट होते हैं और ना ही कंपेनियन सेल्स होते हैं, ठीक है। जो वेसल एलिमेंट की जगह इनके पास ट्रैकीड्स होती हैं, जिनके थ्रू पानी ये इसमें इनमें ट्रेवल करता है। ट्रैकीड्स पुराने दौर का जाइलम आप समझ लें, एशियंट जाइलम ही है। They form cones with reproductive structures, unisexual cones. Gymnosperms are heterosporous. अच्छा, जो जिम्नोस्पर्म्स हैं पे कोन्स डेवलप होती हैं, और कोन्स कैसी होती हैं, यूनिसेक्सुअल होती हैं, मींस या मेल कोन्स होती हैं या फीमेल कोन्स होती हैं, और कोन्स इनके अंदर इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। मेल कोन्स में पोलन डेवलप होता है, फीमेल कोन्स में एग्स डेवलप होते हैं।
जिम्नोस्पर्म हिट्रोस्पोरस हैं, मीन्स जो मेल स्पोर है वो डिफरेंट होता है, छोटे साइज का कहा होता है, और जबकि जो फीमेल स्पोर है मैक्रोस्पोर वो बड़े साइज का है, हिट्रोस्पोरस, दो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स, ठीक है। ऑल्टरनेशन और जनरेशन तो ऑब्वियसली सब प्लांट्स में है तो इनमें भी होगी। पॉली एम्ब्रियोनी बट फाइनली सिंगल एम्ब्रियो मेच्योर्स, एक साथ बहुत से एम्ब्रियो बनने लगते हैं, बेसिकली दो बनने लगते हैं, ये बहुत सारे नहीं, दो बनने लगते हैं, दो एक साथ बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही डेवलप करता है, दूसरा डीजनरेट हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा जी, हाँ, एक और पॉइंट है कि वो मैं आपको दिखा दूँ अब, ये कोन्स, ये आ गई इसकी कौन सी देख रहे हैं आप, ये मेल कोन्स हैं। मेल कोन्स जो होती हैं ना, बहुत एक तो क्लस्टर्स में ग्रो करती हैं, ये एक जो है इनमें से एक ये मेल कोन है, ठीक है ना। स्मॉल साइज्ड होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, स्मॉल साइज्ड होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, और क्लस्टर की फॉर्म में ग्रो करती हैं। स्मॉल साइज होती हैं, क्लस्टर की फॉर्म में ग्रो करती हैं। अब ये देखो, ये नीडल लाइक लीव्स हमें कितने क्लियरली नज़र आ रहे हैं, नीडल लाइक लीव्स, और ये मेल कोन्स लगी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये एक और फिगर है, ये फीमेल कोन है और ये मेल कोन्स हैं, ठीक है। फीमेल कोन्स हमेशा अपर ब्रांचेस पे लगी होती हैं, और ये मेच्योर है, इसका जब खुली हुई होती है ना तो उसका मतलब ये मेच्योर है। और ये मेल कोन्स हैं जो स्मॉल है और क्लस्टर में की फॉर्म में है। ये देखो, ये क्लो अभी ग्रीन कलर की है और बंद है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अभी इमेच्योर है, इसने मेच्योर अभी होना है। तो ये कोन्स हैं, इनके अंदर इनके पार्ट्स ग्रो करते हैं, ये मेल कोन्स हैं, पोलन कोन्स इसको लिखा हुआ है, कोई और ग्रुप है। अच्छा जी, तो अब एक दो बातें और कोई बतानी थी मैंने, ठहरे में जी। द स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म, जो जिम्नोस्पर्म की स्टेम है, कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ठीक है ना। ज़्यादातर ब्रांच्ड है, एक दो ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें कभी भी ब्रांचेज नहीं होती। हाँ, थिक क्यूटिकल होती है, ये याद रखिएगा। नीडल लाइक लीव्स मैं दिखा चुकी हूँ। सनकन स्टोमेटा है, रिड्यूस द रेट ऑफ वाटर लॉस इन दीज प्लांट्स, ठीक है ना। स्टोमेटा अंदर कहीं डीपन प्रेजेंट है ताकि पानी ना ज़ाया हो। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दे आर प्रेजेंट इन द कोल्डर रीजन्स वेयर देयर लेस वाटर अवेलेबल, water is available. Male cones की definition इसमें given है, they have microsporophylls और few microspores, फीमेल में मेगास्पोरोफिल्स होते हैं, और उसके ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, मेगास्पोरेंजियम। ओके, इसके बाद जी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि आपको जिम्नोस्पर्म के मेजर कैरेक्टर्स बताऊं। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट मी, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली थ्रू कमेंट्स, एंड आई थैंक यू ऑल। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।